आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और 6 साल हो गए इसको लेकर एंड आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम लोग नए पेरेंट्स हैं और वी बोथ आर आई थिंक बॉर्न इन दी आई नो वी बोथ आर बॉर्न इन दी 80s सो वो टाइम पे हमारे पेरेंट्स या तो अब्रॉड जाए या तो एक दो दुकानें थे जहाँ पे इम्पोर्टेड स्टफ मिलता था या कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी समething used to get for kids. But right now I'm having a ball of a time buying the most amazing products and stuff for my daughter Radhya. We don't have to always travel abroad and then pick up things and come. I'm very proud of our country and proud of all of you all for having something like this here itself in every city in our country, and for parents like us it's a privilege. तो मैम राध्या के बारे में कुछ आप बातें कुछ शेयर करना चाहेंगे आप और राध्या के बीच? 6 महीने की हो गई है। 6 महीने की 6 महीने की हो गई है और शी जस्ट फिल्स अप माय entire day, night is all filled up just by my daughter, and both of us are we feel complete as a couple now that we have Radhya. She's I would say the outcome of the love we both have for each other, and she's just all of love. That girl is very touchwood. With the grace of God, she's a happy kid, smiley kid. So whenever you all meet her, you all will know what I'm saying. that'll be so. भरत सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब ईशा मैम प्रेग्नेंट थी तो जो है हस्बैंड भी उतना ही प्रेग्नेंट होता है जैसे उनका ख्याल रखने के लिए? तो trust me, 9 months I was pregnant. I feel for me also, but actually I wanted to give her all the time and energy of myself, and I enjoyed every bit of it. And now after that, I think that after Radha coming into our life and into our world, I think every day spent with her and listening to her tantrums and dealing with her, whatever it was, but it was all with love. And today Radha fills up every single morning of ours to the night. We're just looking forward to spending our whole day with her basically. राइट, क्या चेंज हो गया है पहले और अभी जब आराध्या आ गई है आपकी लाइफ में? आराध्या अभिषेक की बेबी, माय बेबी इज राध्या. वेल, घर में अभी बहुत और आवाज़ है और lot of हलचल in the house, continuously something or the other is happening. और चेंजेस यही कहूँगी, अभी हम लोग शुरू से एक रूटीन लाइफ जीते हैं भरत और मैं, टाइमिंग के हिसाब से. अभी राध्या का रूटीन संभालना और उनके लिए रोज़ कुछ नया ट्राइंग समथिंग न्यू फॉर हर टू ईट. there's so much to do when you're a mother. It's beautiful. राइट, मीडिया में आजकल जो है पेपराजी को लेकर बहुत सारी, जैसे तैमूर की फ़ोटो आती है, फिर आराध्या की फ़ोटो आती है, तो उस चीज़ को लेकर कितने आप दोनों कंफर्टेबल हैं? अगर आप इस बारे में कुछ शेयर करना चाहें, अगर मीडिया पेपराजी करती है या फिर उनके फ़ोटोज़ लेती है तो उसको लेकर कितने कंफर्टेबल? each parent to the way they want to do it. I don't want to comment on anyone, but personally both of us हम दोनों हमेशा we're not in the face all the time. We are quite private as a couple, and I want my daughter to have, I know it's not going to be possible, like it wasn't possible for me being so and so's daughter, but as much as possible I want her to have a normal upbringing, and जब ज़रूरी हो आएगी सामने, लेकिन not in the face. तो ईशा मैम जब एंट्री कर रही थी एग्जीबिशंस में तो कुछ ऐसे बहुत सारे बच्चों के सब रखे लगे हुए, तो कुछ ऐसा फेस आपके, हाँ ये मुझे लेना चाह रहा था? मैंने 2 चीज़ ऑलरेडी देख लिया है. आई वॉन्ट एक वेरी सुंदर फीडिंग चेयर था और एक छोटा ट्रक विथ द राइडर. These 2 things I had already set my eyes on. तो ईशा मैम बॉलीवुड से बहुत टाइम से ब्रेक ले चुकी है, तो फिर लोगों के बीच में आने के लिए तैयार है, दिख सकते हैं? जी ज़रूर. My permission is always given to her. She always has my permission. Whenever she wants, she can always be there. ईशा, जैसे करीना का कल एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो क्या आप भी बड़े पर्दे पर इसी तरह धमाकेदार एंट्री करने वाली? अगर कुछ इस बारे में? धमाका तो मचते रहता है. आई मीन I've just done a short film after a long gap, and it was a lot of fun, and it will be releasing soon. Definitely अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट मिले जो
मैं ठीक है, मैं कहूँगी कि अभी मैं ये टाइम निकाल के ये फिल्म पैशनेटली करना चाहूँगी तो ज़रूर करूँगी, और इट हैज़ टू बी रियली वर्थ माई टाइम एंड एनर्जी। तो जिस तरह से बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आई थी, तो पीएम मोदी ने भी बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, बहुत सारे कानून सामने आए हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी की बात है कि भारत में रह के जब लोगों को जस्टिस की बात करें तो वो चीज़ें पीएम मोदी ने बहुत सारी चीज़ें सामने लाई। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है और अब जाके उसका कुछ आउटकम आ रहा है, और दिस हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली, एंड ऐसे हरकतें होनी ही नहीं चाहिए, एंड women have to be respected a lot because we women are the ones who give birth, who are very strong. We are homemakers, we can handle a profession, we handle emotionally all the men at home and everything, and we are no less than, shouldn't be treated any less than a goddess. In our country हम दुर्गा माँ को प्रे करते हैं, और on the other hand, you know, people are doing these kind of very uncouth things. So first of all, educate करना ज़रूरी होता है। बहुत लोग बिना मतलब के बिना जाने करते हैं। So from a very young age, from villages to everyone, लड़कों को सिखाना चाहिए कि एक औरत को आप वर्शिप करो और खुश रखो। Thank you. Respect her, yeah.